अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का आवाज आ रही होगी अब? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है, आवाज आ रही है। बड़ी स्लो ज्वाइनिंग हो रही है आज। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन ही नहीं कर रहे। अब सबके स्टेमिनास खत्म होते जा रहे हैं। करवा हुआ है। एक दो लोगों का तो मुझे आया है अभी मैसेज, और वो कि शायद ना ज्वाइन कर सकें, लेकिन बाकी चले, मेरे ख्याल हम स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। सो एक तो हमारा वो क्रूसिबल्स ऑफ लीडरशिप है टॉपिक, वो हम सेकंड हाफ में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी जो इससे अगला एक हमारा लीडरशिप का टॉपिक आना है, उससे मिलती जुलती चीज, नॉट एग्जैक्टली उस आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन ये चीज हमें ना पता हो तो उसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या इसकी बात कोई कर रहा है या उन चीजों की बात कर रहा है। सो लीडरशिप का वैसे भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। तो उस हिसाब से हम इसको आज देखते हैं कि 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। ये जॉन मैक्सवेल हैं, काफ़ी लीडरशिप पे उनकी बुक्स वगैरह भी हैं। एक्चुअली उनका प्रपोज्ड बुक है या प्रपोज्ड मॉडल है, इसकी बेस पे हम इसको पढ़ेंगे, 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। सो इनके अकॉर्डिंगली ये कुछ 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप होते हैं। लीडरशिप की अपनी भी अब जर्नी है, जो हर लीडर जो है वो क्या करता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1, इस पे हमने थोड़ी सी बात भी की थी कि ये पोजिशनल लीडर होता है, and then you move to level 2, level 3, level 4 and level 5. So इनके अकॉर्डिंगली ये 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल all of their life they remain here. They do not improve their level. Some of them improve their level of leadership and they reach to level 2, and then some of them reach to level 3 and then 4, and very few people they reach to level 5. But according to them, if you talk about effectiveness, level 5 is the most effective uh, level of leadership. But in सबके कुछ ना कुछ pros and cons हैं, and how can we move from one to the other and then another to the other and then level 5 तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमारा मेन जो है ना वो लेक्चर होगा। Some people also call it 5 R's of leadership because all of them have these R's: rights, relationships, results, reproduction, and respect. So इन 5 लेवल्स के मुताबिक थोड़ी सी इसकी समरी देखते चलते हैं, फिर आगे जाएंगे तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। When we talk about the follower-leader relationship and what kind of relationship exists at which level, then these are the things that are very helpful. For example, if you are at level 1 of leadership, people follow you, but because they have to. So this is the first level of leadership. You call these people leaders, but these are positional leaders, and also
You follow them because you have to. Have to means that maybe you are trying to uh, save your jobs. Maybe you're following them because you have to. It is in your job description, and otherwise you might lose your job. You might not have enough money, and etc. etc. So they take it as a kind of obligation, job obligation, and then they follow you. They do follow you, but the attitude is that they have to follow you. That is why they are following you. But once you do some things that we'll talk about, and you move to level two, which is the permission level, position level to permission level, then people follow you. यहाँ तक तो ये सेम ही है, people follow you, people follow you. यहाँ था because they have to, and here it is because they want to. So ये difference आ जाता है when you reach to level 2, because now it is their choice and they want to follow you. And when you reach to level 3 of the leadership, which is the production level, still people follow you, but the reason is changed. The reason is now that because of what you have done for the organization. If you have taken your organization from low profit making organization to a high profit making organization somehow, if you have developed new products and people know that you can do things for the organization, that is why people follow you. Here because they want to, here because you are good for the organization and you're doing something for the organization. And when you reach to the fourth level, that is the people development level. Position to permission, permission to production, production to people development. And people follow you because of what you have done for them, for people. Here it was for the organization, and here it is for what you've done for people. And then the last level is the pinnacle level. People follow you because of who you are and what you respect. So this is the most difficult level to be achieved, but this is the most pinnacle level of the leadership. So अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, there are three things that we can kind of remember or we can tag this model with. One is that it has 5 levels. 1, 2, 3, 4, 5. Second thing that we talked about is it has R's. Relationship, right, relationship, results, reproduction, and respect. And at the same time, you can see that some people might also call it the 5P model of leadership. The 5 P's of leadership levels, because from position to permission, from permission to production, people development to pinnacle. So P's are here, levels are here, and then R's are here. So that might give you some hint of how you can remember and understand these levels. Now, one by one, each level. First of all, there's a term known as true leadership. So true leadership isn't about having certain job, title, or position. जैसे शुरू में भी I think one of you asked a question कि जिनको position मिल जाती है वो भी तो leader ही होते हैं. Yes, they are leaders, but they are not true leaders. They are position leaders. Because true leadership is about investing in people, building relationship, and inspiring them. खाली पोजीशन मिलने से आप ये चीजें नहीं कर सकते. You are a leader, but you're not a true leader. True leadership will involve these things. And true leadership is about achieving results and building a team that produces. So लोगों से आप इंस्पायर करके उनसे काम ले सकें, उनको मोटिवेट कर सकें. That is true leadership.
True leadership is also about helping people develop their own skills to become leaders themselves. So it is not about just only inspiring them, only motivating them to work. It is also to develop leadership skills in them. ये हम एंड में जाके बात कर रहे होंगे addition model versus multiplication model. So this will become a multiplication model. So इस पे हम बाद में करेंगे. And true leaders who have skills and dedication can reach the pinnacle of the leadership, extending their influence for the benefit of others, creating true leaders following behind. So pinnacle पे जाके आप सिर्फ खुद leader नहीं होते, you have many leaders around you, and you are actually making people around you leaders as well. तो ये हमने पहले ही बात कर ली कि ये 5 levels पे attitudes लोगों के क्या होते हैं. Now, starting from level 1, इस पे अब आपने थोड़ा सा वो देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किन पोजीशन. जी थोड़ा सा ये क्लैरिटी नहीं हो रही जो आपने ये लेवल्स बताए हैं, ये मतलब ये लेवल्स फॉलो करने पड़ते हैं? नहीं, ये फॉलो नहीं करने पड़ते. दिस इज अ जर्नी ऑफ अ लीडर. आई मीन ये जर्नी में ये भी हो सकता है कि कोई स्टेप 3rd से स्टार्ट कर रहा हो, कोई 1st से स्टार्ट कर रहा हो, या सबको सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है? यूजुअली ये होता है कि एक्चुअली ये बात की है बिजनेस लीडर्स की ना, तो बिजनेस लीडर्स को ये फॉलो करने ही पड़ते हैं स्टेप्स. कई दफा हम ये फॉर्मली कर रहे होते हैं, कई दफा हम इनफॉर्मली कर रहे होते हैं. एक चीज. दूसरी चीज, हो सकता है कि कुछ लोगों के 40 years ऑफ लाइफ यहीं गुजर जाए और वो इधर ही रहे. कुछ लोग 2 years में ये पोजीशन करके खत्म लेवल 2 पे शिफ्ट हो जाएं, एंड देन विद इन 5 to 10 years वो इधर पहुंच जाए. कुछ लोग हो सकता है कि 6 months पे इसको इग्नोर करके इधर पहुंच जाए. बट ये लेवल्स आपको किसी ना किसी तरीके से वो करने ही पड़ते हैं, इसको गुजारना पड़ता है. बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर टाइम कि इतना टाइम इस पे लगेगा और कितना टाइम किस पे लगेगा. और ये क्या ये फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा. इस पे लेवल 1 पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा. इस पे मजीद हम डिस्कस भी करेंगे. सो लेवल 1 लीडर का पहले मकसद ये है कि आपको कोई ना कोई पोजीशन मिल गई, चाहे आप इस काबिल थे या नहीं थे, बट आपको एक पोजीशन मिल गई कि आपको लोगों को लीड करना है. बट लेवल 1 का प्रॉब्लम क्या है? लेवल 1 पे जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपके लोग हैं वो आपको कितनी एनर्जी देंगे, कितना आपको फॉलो करेंगे. एटीट्यूड क्या था? बिकॉज दे हैव टू. दैट मीन्स द मोमेंट दे विल गेट अ चांस दे आर नॉट गोइंग टू वर्क. एंड इस पे उसमें बुक में या उसमें एग्जांपल जो देते हैं वो ये देते हैं कि लेवल 1 लीडरशिप अगर आपने देखनी है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लेवल 1 लीडरशिप, तो आप उनके एम्प्लॉइज को ऑफ टाइम पे जरा देखें कि अगर उनका 5 o'clock का टाइम है छुट्टी का, तो क्या वो ऐसा तो नहीं हो रहा कि 4 बजे वो सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं और 4:30 बजे पैकिंग शुरू कर देते हैं और 4:45 पे वो अपना जो है वो बिल्कुल तैयारी होती है और जैसे ही 5 o'clock होते हैं वो अपना साइन आउट करते हैं एंड गाड़ियां सीधी करके लगा के आए होते हैं ताकि निकल जाएं फौरन, उसमें भी टाइम ना लगे. तो यूजुअली ये रिफ्लेक्शन है लेवल 1 लीडरशिप के फॉलोअर्स की. अगर वो बहुत ही बस जाने के लिए तैयार हैं, दैट मींस वो मिनिमम कंप्लायंस कर रहे हैं. एंड व्हाई आर दे स्टेइंग बैक इज बिकॉज दे हैव टू. वो 4 बजे जा नहीं सकते, अदरवाइज वो 4 बजे चले जाएं अगर 5 बजे छुट्टी हो रही है.
तो 5 बजे उनको छुट्टी हो रही है तो दे आर गोइंग टू स्टे ओनली टिल 5. So all of their engagement and their motivation and everything is directed towards 5 o'clock. All what they are looking forward is to how not to work. All they are looking forward is to these coming holidays, Eid. So ये है पार्ट है, आप इसको ऑब्वियसली रिलिश करते हो, ऐसा इशू नहीं है. बट अगर वो सारा दिन ही ऑफ टाइम का ही सोचते रहते हैं तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम. काम का नहीं सोच रहे, कोई ना कोई इशू है. द मिनिमम गोल ऑफ द फॉलोअर्स इज द मिनिमम कंप्लायंस, जिससे उनकी नौकरी बची रहे बस, और उनका बॉस किसी भी तरीके से बस जो उसको काम दिया वो कर ले. तो मिनिमम कंप्लायंस पे आपके लोग होते हैं. पोजीशन 1 लीडर यहां से रिकॉग्नाइज होती है. इसकी कुछ अच्छी बातें क्या हैं? एक्चुअली यहां थोड़ा सा और अगर बात कर लें, ये इसका जो लेवल 1 लीडरशिप को एक्सरसाइज करते हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है? वो हमेशा आपको जो थ्रेट करेंगे वो अपनी पोजीशन का थ्रेट करेंगे. एक्चुअली ये चीज हमें यहां डिस्कस करनी है. हमें इनका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होगा अपनी पोजीशन को रखते हुए आपसे काम करवाने का तरीका. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बॉस, आई कैन फायर यू, आई कैन डू दिस टू यू, आई कैन रिवॉर्ड यू, आई कैन पनिश यू. सो ये जो आई कैन एटीट्यूड है ना, एंड पोजीशन एटीट्यूड है, ये इनमें लेवल 1 लीडर्स में होता है. एक्सक्यूज मी सर. जी जी. नॉर्मली जो पोजीशन 1 है, लेवल 1 है, इसमें अगर हम देखें मतलब इट्स अ कंपल्शन के फॉलोअर्स ने फॉलो करना है अपने लीडर को. तो हमारे जो इमीडिएट बॉसेस होते हैं वर्क प्लेस में, उनको भी हम इस प्लेस में लेके आ सकते हैं कि दे आर द लीडर फॉर अस. आई मीन लीड कर रहे होते हैं एंड वी हैव टू फॉलो देम. मतलब विलिंगली अनविलिंगली वो एक अलग बात है. ओके, अब देखिए इसमें जरा डिफरेंस समझें. आप अपने लीडर को इसलिए फॉलो कर रही हैं कि आपके सर पे अजाब आया हुआ है तो आपने उसको झेलना है. अपने पोजीशन 1 में तो आपने कहा दे हैव टू. मतलब आप विलिंगली हैं या नॉन विलिंगली हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है, बट यू हैव टू फॉलो देम. नहीं, आपका एटीट्यूड ये है, व्हाई यू आर फॉलोइंग देम, बिकॉज यू हैव टू. अदरवाइज आपके पास कोई रीजन नहीं है. अगर वो बंदा आपका बॉस ना हो तो आप उसको कभी बात भी ना करें. माइट बी. ठीक है. तो अगर वो बॉस बन गया है, बिकॉज ही और शी इज अ बॉस, तो आपको उसको फॉलो करना है. दैट मीन्स उसके एटीट्यूड में पोजीशन लीडरशिप के एलिमेंट्स हैं. फॉलोअर्स का एटीट्यूड हम देख रहे हैं. अगर आप पोजीशन पावर और पोजीशन को ही यूज करते हुए लीडरशिप करते हैं, यू आर अ लीडर बिकॉज यू हैव बीन गिवन अ पोजीशन. तो आपके काम करवाने में भी पोजीशन का ही याद है कि आप पोजीशन को ही यूज करते हुए काम करवाते हैं. तो फिर आपके फॉलोअर का एटीट्यूड ये होगा कि हाँ बस इसकी बात माननी है, जैसे कैसे भी है माने, बिकॉज दे हैव टू, नॉट बिकॉज दे वांट टू. देयर माइट बी सम. आप जरा थोड़ा सा सारे ये देखें कि आपके इमीडिएट बॉस की बात मानना ना मानना आपके लिए कितना कंपल्सरी है. और हो सकता है कि इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके प्रीवियस बॉसेस में से ऐसे लोग हों जो आज भी आपको काम कहें तो आप बेफिक्र होकर उनकी बात मानते हैं और उनकी मेंटरशिप में रहते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, बिकॉज यू वांट टू, और मे बी यू रिस्पेक्ट देम. जी ऐसे ही है. सो फॉलोअर्स का डिफरेंस आ जाता है. पोजीशन लीडर अगर अपने आप को लेवल 1 पे ही रखता है, अब हो सकता है कि वो उसको पोजीशन मिली है तो लेवल 2, 3, 4 पे जल्दी चला जाए, बट अगर वो पोजीशन लीडरशिप एक्सरसाइज करता है तो फिर उसके लोगों का एटीट्यूड यही होता है कि वो उसको फॉलो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो बॉस है. द मोमेंट ही और शी इज नॉट अ बॉस, उसकी बात भी नहीं सुनेंगे. एंड अगर किसी ने लेवल 2 अचीव कर लिया होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो हो सकता है वो आपका बॉस है या नहीं है, उसके पास कोई पोजीशन है या नहीं है, स्टिल यू आर गोइंग टू फॉलो दैम.
इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। इसकी अपसाइड, इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल, अब लीडर्स के लिए एक डिफरेंट एंगल आएगा। अभी तो हम फॉलोअर की बात कर रहे थे ना, अब लीडर के लिए एक अपसाइड आएगी इसकी, पोजीशन लीडर का क्या फायदा होता है। देखिए, इनिशियली लाइफ में हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं लेवल 1 लीडरशिप ही मिलती है, चाहे वो स्कूल में मिली हो, चाहे वो लेट्स से सीआरशिप में मिली हो हमें, चाहे हमें वो एक या दो लोगों को हम मैनेज कर रहे हो इन सम ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कोई पोजीशन मिलना इज नॉट बैड, इसकी अपसाइड भी ये है कि आपको एटलीस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है ऑफ लीडरशिप। So if you are new to leadership, obviously कभी ना कभी तो आपने पहली दफा लीडरशिप का काम किया होगा, and you receive a position. There are 4 things to celebrate. अगर आपको कोई पोजीशन मिल जाती है तो लीडर के लिए अच्छी बात यह है, वो ये 4 बातें हैं। पहली बात, a leadership position is usually given to people because they have some leadership potential. This is one prediction. आप अपने बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यू माइट हैव लीडरशिप पोटेंशियल, अनलेस कि वो बिल्कुल ही आप सिफारिश और बिल्कुल ही आपका वो नेपोटिज्म और क्रोनिज्म की बेस पे आपको कुछ चीज पोजीशन मिली हुई है। सो वंस यू हैव बीन गिवन द इनविटेशन टू लीड समथिंग, you need to celebrate because someone in authority believes in you. So this is first thing to be celebrated. अगर आपको कोई पोजीशन मिलती है, अभी आप कितने अच्छे लीडर हैं कितने अच्छे लीडर नहीं है ये बात तो नहीं हुई, बट एटलीस्ट आपको फॉर्मल लीडरशिप मिल गई है, आपको कोई पोजीशन मिल गई है। So this is first thing to celebrate. Second thing is a leadership position means authority is recognized. With position and title comes some level of authority or power. Leaders must prove themselves before they are given much power and authority. आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब आपको प्रमोट किया जाता है, if it is on the marital basis, तो they look something in you and then they promote you. कि हाँ इसमें ये चीज ये एलिमेंट बेहतर होगा, that is why he or she should be promoted. So second thing is that you'll have some power to influence and to start your leadership. Then third thing is a leadership position is an invitation to grow as a leader. ये सबसे इसका बड़ा बेनिफिट है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो एज अ लीडर। देखिए, हमने शुरू में जब पढ़ा था लीडरशिप डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो लीडर एंड लीडरशिप का जो डिफरेंस था वो यही था, लीडर आप रीडिंग से भी बन सकते हो, लेकिन लीडरशिप आपको एक्सरसाइज किए बगैर नहीं आती। So when you are given a leadership position, now you have a chance to learn leadership because now you can exercise leadership. You are going to make mistakes, but you have a platform जहां आप leadership सीख सकते हैं। If a leader is not willing to grow, then not much leading will take place. ये लोग होते हैं जिनको पोजीशन मिल भी जाती है, but if they are not willing to grow as a leader, तो वो हार्डली कोई लीडरशिप करते हैं, बस वो अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं, अपने आप को फर्दर ग्रो नहीं कर सक रहे होते। बट स्टिल यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू एक्सरसाइज योर लीडरशिप स्किल्स। Then fourth thing is that the leadership position allows potential leader to shape and define their leadership. वही बात जो भी हमने की, this allow the people invited to take the leadership position and the opportunity to choose the kind of leader they want to be. At least आपको किसी ने लेडर में फर्स्ट स्टेप जो है आपका, वो आपको पोजीशन मिल गई है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लीडरशिप कितना डेवलप करना चाहते हैं। सो if you get a position of leadership, you are a positional leader. You might remain as a positional leader, but these are the good things that you need to celebrate. At least आपको मौका मिल गया। But there are downsides to level 1. Having a leadership position is often misleading.
अगर आपको कई दफा पोजीशन मिल जाती है एंड यू आर अ पोजीशन लीडर, देखिए फर्क ये है कि आप में कोई क्वालिटी नहीं है, आपकी पोजीशन की वजह से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं. This can have its negative impacts. Even though you are given certain title or position, it does not automatically makes you a leader. You are leader because of the title, not because of what you are. The moment this title is gone, you are no more a leader. इसकी bad side है. Do not think that you are a leader because you have a position. The problem is it is misleading. Most of us think we are a leader because we have a position. So leaders who rely on position to lead often devalue people. इनका आप स्टाइल थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं. वो लोगों को कुछ भी नहीं समझते, अपने सबॉर्डिनेट्स को डीवैल्यू करते हैं. Then positional leaders place very high value on their position and not all the other important aspects of leading. You can see this when they talk to people, when they talk to you as if you are a subordinate. कितनी दफा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बॉस हूं, मैं आपका सुपर ऑर्डिनेट हूं, मैं आपका लीडर हूं, मैं आपका मैनेजर हूं, मेरे पास ये पावर्स हैं, दिस इज व्हाट आई कैन डू टू यू, दिस इज व्हाट कैन बी डन, यू आर डिपेंडेंट ऑन मी. ये सारी बातें जो हैं, अगर ये कोई बंदा करता है तो दैट, या वो ऐसा सोच के चलता है किसी तरह भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो पोजीशन लीडर के लेवल पे ही, दिमागी तौर पे पोजीशन लीडर के लेवल पे ही रहता है. नाउ first, positional leaders feed on politics. Positional leaders focus on control instead of contribution. So mainly ये क्या करते हैं, इनका काम होता है पॉलिटिक्स से काम करवाना. मे भी किसी एक की तारीफ कर दी, दूसरे की बुराई कर दी किसी के सामने, इसकी बात उसको कर दी, उसकी बात उसको कर दी, उसको उसका रेफरेंस दे के उसको, या किसी भी तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स करके तो काम करवाते हैं या अपनी पोजीशन को रिटेन रखने की कोशिश करते हैं. That means they are acting as a positional leader. So they focus on control, not on contribution. For example, आप इनकी बात बस मानते रहें एंड यस सर करते रहें, काम चाहे आप कम से कम करें, आपने काम 100% किया और आपने इनकी बात मानने में, सुनने में या इनकी पोजीशन रिकॉग्नाइज करने में 90% एक्ट किया है. They will consider you a 90% person. अगर आपने काम किया है 50% जस्ट रेगुलर कंप्लायंस जो आपने करनी थी, लेकिन आपने इनकी पोजीशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 100% काम किया है, तो they will think you are a 100% person. इनकी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि राइट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करते हैं. ज्यादा इनका एम्फेसिस इस पे होता है, राइट्स पे, किसके क्या राइट्स हैं, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, बजाय इसके कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने कैसे फुलफिल करनी है. द प्रॉब्लम विद देम इज, एंड इनके साथ जो इशू होता है, और अगर हम इस तरह की हरकतें करें तो हमारे साथ क्या इशू होता है, पोजिशनल लीडरशिप इज ऑफन लोनली. Since level 1 leaders mostly only care about themselves and their position, it becomes lonely at the top. ऐसे लोगों को आप देखेंगे यूजुअली जब इन पे काम की बारी आएगी तो ये अकेले बैठे होंगे. Nobody is with them from the heart और मोटिवेशन से नहीं, हाँ कंप्लायंस की वजह से हो सकता है. बिकॉज जैसे ही लेवल 1 लीडर आपको काम कहेगा, इसने आपको हमेशा थ्रेट किया हुआ है कि 5 बजे तक रुकना है, ये करना है, वो करना है,
ये पावर्स हैं, ये पनिशमेंट हो सकती है। अब आप इसको बताना शुरू हो जाएंगे कि दिस इज नॉट माय ड्यूटी, मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं ये काम नहीं कर रहा। So they are usually lonely. The reason is they are selfish and they just take care of their position and their seat. Then leaders who remain positional, they also get branded. They get a name. ये ज्यादा देर के लिए जो पोजिशनल लीडर रहते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इनका मार्केट में इनके नाम के साथ टैग लग जाता है। उसको आप कहते जो मर्जी हैं, लेकिन आप एक्चुअली उनको पोजिशनल लीडर के नाम से जानते होते हैं। मसलन जब ये लीडर था, एवरीबडी वाज यूज्ड टू सलूट। जब ये लीडर खत्म हुआ तो इसके पास से गुजरते गुजरते लोग कहते हैं कि इसको सलाम भी नहीं करना, ये जब था तो ये ऐसा था, वैसा था, ये है वो। बट यूजुअली दे आर ब्रांडेड एज पोजिशन लीडर्स and in the wrong way, so level 1 leaders become branded as positional leaders. और इसके लिए आप दुआ कर रहे होते हैं कि इसको दोबारा कभी पोजीशन ना मिले। Employee turnover is high for potential leaders, positional leaders, and then positional leaders receive people's least. They do receive it, but they receive the least and not their best. And level 1 leaders are the weakest of all leaders and give their least. As a result, their people give least as well. ये लोगों के साथ बिल्कुल रिलेशनशिप जीरो होता है। इनका सिर्फ यही रिलेशनशिप होता है कि मैं आपका बॉस हूं एंड आई हैव अ पोजीशन, आई हैव अ पावर, व्हिच इज व्हाई पीपल आल्सो गिव देम द लीस्ट। अगर आपको लेवल 1 लीडरशिप पे आप हैं, तो व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स दैट कैन मेक यू अ बेटर लीडर। क्योंकि आप देखें, शुरू में 1 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में लोगों को पता नहीं चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, एंड हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव विल डिसाइड कि लोग आपको किस लेवल पे रैंक करना शुरू करते हैं दिमागी तौर पे। सो लेवल 1 पे बेस्ट बिहेवियर्स जो आपके होंगे, इन ऑर्डर टू हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर लीडरशिप पोजीशन while shifting to the next level, you need to do these 3 things. क्या करना है आपने? Stop relying on position to push people. Don't use your position to get things done. And you need to use other skills. इसका सिंपल तरीका यही है कि आप लोगों को बार बार अपनी पोजीशन के बारे में या किसी भी वजह से थ्रेट या कोई ऐसी चीज ना करें। And then you can trade entitlement for movement, which means you are not concerned about your title and their title. You are concerned about the work and the movement which is taking place. Which means don't rely on your title and lead people, but keep your people and the organization moving forward to its vision. तो आप जब भी बात करते हैं अपने सबॉर्डिनेट से, काम के बारे में बात करें, विजन के बारे में बात करें, मूविंग फॉरवर्ड के बारे में बात करें। डू नॉट अगेन एंड अगेन टेल देम अबाउट देयर पोजीशन। व्हाई? बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि आप उनके बॉस हैं, आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है। एंड देन लीडर्स, ओके, लीव योर पोजीशन and move towards the people. Do not expect your people to come to you for their needs and wants, but go to them. Look where people are and then go to them, which means initiate things. Don't wait for them to initiate. Don't wait for them to come to you. You can go to them. एंड बहुत दफा हम टची हो जाते हैं कि मैंने ऑर्डर किया था और मेरे सबॉर्डिनेट ने मेरी बात नहीं सुनी। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज शोइंग लेवल 1 लीडरशिप कि अगर उसने आपकी बात नहीं सुनी तो उसने कोई बड़ा बुरा काम कर दिया।
Okay, how can we move to level 2 when we are at level 1? Aapko, you need to change your thinking about leadership. It is possible by internally embracing the following 4 statements before you will be able to move to level 2 from level 1. Which means titles are not enough. If you got the title, that is fine, but it is not everything that you are looking for as a leader. Not enough. And people, not positions, are the leader's most valuable assets. आपकी जो position है, that should not be valuable to you. Your people should be valuable to you because वो आपके असल asset हैं. उन्होंने काम करना है आपके लिए. आपकी position ने आपके लिए कोई काम नहीं करवाना. And then कुछ चीजें हम पढ़ते आए हैं वो भी हमें हेल्प करेंगी. A leader doesn't need to have all the answers. इस तरह लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था about the weaknesses, showing your weaknesses and showing your authenticity and asking people things. इस पे एक चीज मुझे याद आ रही है कि हेनरी फोर्ड था, आई थिंक, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया था, उसको कोर्ट में बुला लिया गया था किसी केस के बारे में, और he was the CEO of his organization at that time. And उसने इस एक स्टेटमेंट से अपना केस विन कर लिया था, क्योंकि उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग, काउंटर क्वेश्चनिंग बहुत सारी की जा रही थी कोर्ट में. विद एन आंसर, मैं सीईओ तो हूं, बट इट डज नॉट मीन दैट आई नो एवरीथिंग, बिकॉज मेरे पास जो लोग काम कर रहे होते हैं मेरी सबऑर्डिनेशन में, मुझे जब भी किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, मैं उनमें से बुला के किसी को पूछता हूँ. आई एम अ सीईओ बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. यूजुअली पोजिशनल लीडर की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनको कुछ नहीं पता. तो ये एटीट्यूड आपको थोड़ा सा फायदा दे सकता है कि इट्स ओके नॉट टू नो एवरी आंसर. दैट इज व्हाई अ गुड लीडर ऑलवेज इंक्लूड्स अदर. ठीक है, सो ये बाकी लोगों को जो है वो अपने साथ इंक्लूड करके रखता है, ये सबको अलहदा नहीं करता और खुद अलहदा से बैठा नहीं रहता. Again, 10 things that you can do at level 1. Thank the people who invite you to the leadership. जिन्होंने आपको पोजीशन दी है, उनको थैंक यू करें, उनके साथ ठीक रहें, बिकॉज आपको पोजीशन मिली है. Dedicate yourself for leadership growth, which means you need to have leadership readiness. आप readiness का मतलब सिंपली है कि कितना आप consciously effort करते हैं to grow as a leader. So readiness should be there. And define your leadership. आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि आप अभी सिर्फ पोजीशन लीडर हैं. People will not listen to you because they have to, they want to. People are only listening to you because they have to. So आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. Shift from position to potential. क्या कर सकते हैं आप उसकी तरफ शिफ्ट हों. And focus on vision. Obviously long term सोचें. Shift from rules to relationship. लोगों को ये याद ना करवाएं. Build your relationships with people. You attitude होना चाहिए, I attitude नहीं होना चाहिए. I attitude का मतलब है कि आप जब भी बात करते हो, आप अपनी बात करते हो, अपनी पोजीशन बताते हो. You attitude का मतलब है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोगों को जहन में रख के बात करते हो. You attitude. Then initiate contact with your team, which means go to people, develop some relationships. जिस हमने मोटिवेशन की लास्ट टाइम बात की थी,
आपको कई दफा बड़ी छोटी छोटी बातों से रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ती है आहिस्ता आहिस्ता, and it takes some time to develop relationships. You need to go to people, you need to ask things from people, you need to talk to people, and do not mention your title or position. Why? Because they already have a very clear idea कि आपकी ये पोजीशन है. आप इसको बार बार बताएंगे, it is going to irritate the other people, it is going to irritate your subordinates. And the ninth thing is, learn to say I don't know. It is okay. Because again, जो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा और देखा कि कई दफा अगर आपको नहीं पता आप कह देते हैं, that makes you a human. And जब तक आप अपने आप को ह्यूमन नहीं कंसिडर कराएंगे, आपकी रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं हो सकेंगी. So it's okay to say I don't know, it is fine. And also you need to find a leadership coach or a mentorship जो आपको गाइड करे. How can you go from level 1 to level 2 and how can you become a better leader? जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. Okay. Then we have the level 2 leadership, which is the permission level. At this level, building relationship is the key. Because if you achieve this level, people follow you because they want to. A huge shift of attitude from have to want to. इसमें आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? The key in the level 2 leadership is the relationship. Level 2 is also about developing influence with your people. Leaders go to people, वही जो हमने पहले बात की. And liking your people and treating them like individuals with value. Influence is created and trust is also developed. Now, अब आप ये चीजें करना शुरू कर देते हैं. You are out of your position now. Environment also becomes much more positive than that with level 1 leadership. बेहतर environment हो जाता है. आप लोगों को स्लाइड 2 नजर आ रही है? Yes, sir. जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज आपकी थोड़ी ब्रेकअप कर रही है. नहीं, ये मेरे पास 2 जगह पे ओपन है, तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है? आपको ये कुछ की पॉइंट्स वाली स्लाइड नजर आ रही है? सिर्फ वही आ रही है, पीपल फॉलो यू बिकॉज दे वांट टू. सर लेवल 2 परमिशन, पीपल फॉलो यू बिकॉज दे वांट टू, ये वाली आ रही है. हाँ, मेरे पास ही मूव कर रही है, आपके पास क्यों नहीं मूव कर रही है? 1 मिनट. जी, अब आ गई. तो इसमें एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है एज कंपेयर टू लेवल 1 लीडरशिप. And then level 2 leaders are concerned about getting to know their people, figuring out how to get along with them and finding out who their people are. For example, you remember people by their names. You remember people with the problems and the family issues they might have. Because अब आपने relationship build करना है ना. It's not that you call them with their positional level. क्लर्क तुम इधर आ जाओ और फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा टाइटल से नहीं, आप उनके नाम से याद कर रहे हैं एंड उनके जो इवन इफ यू गो बियॉन्ड उनके नाम से भी कि उनके फैमिली के इश्यूज क्या हैं या उनका कैसे आप उनके लिए बेहतरी कर सकते हैं, लास्ट टाइम उनसे क्या बात हुई थी, व्हाट वर दे कंसर्न्ड अबाउट. तो अब आप इन चीजों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं. As a result, the followers find out who their leaders are, and in turn, this builds solid, lasting relationship. इसमें मुझे एक केस स्टडी याद आ रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, इंडिया की. डिस्ट्रीब्यूशन
की एक कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी. इट स्टार्टेड विद आई थिंक 12 पीपल एंड इट ग्रू टू आई थिंक अबाउट 1200 पीपल. जिस टाइम का वो केस है, आई थिंक केस है 2004-5 का. 1200 पीपल, और इसमें 95% लोग जो थे वो सारे सेल्समैन थे. और हायरार्की बड़ी सीधी सीधी थी. एक इनका सीईओ था जो बंदा खुद था, जो हेड था. इसके नीचे टीम लीड होते थे और टीम लीड के अंडर सारे सेल्समैन होते थे. बस ये इनका टोटल स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बिकॉज इनका काम ही सिर्फ मार्केटिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का था. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका टर्नओवर रेट लेट्स से एग्जैक्टली नहीं बट वैसे बता रहा हूं 2% था. जो इस इंडस्ट्री का टर्नओवर रेट था दैट वाज 20%. कंपनी का 2% था, इंडस्ट्री का 20% था. इस कंपनी की जो सैलरीज थी वो 80% ऑफ द सैलरीज थी ऑफ द इंडस्ट्री. अगर यहां किसी को 100 रुपया सैलरी मिल रही थी एवरेज, तो ये अपने बंदों को 80 रुपए सैलरी देता था. टर्नओवर रेट वाज 2%. यहां सैलरी भी ज्यादा थी, टर्नओवर रेट वाज टू मच. इसका उन्होंने इंटरव्यू लिखा हुआ है उस केस स्टडी में कि कैसे आप समझते हैं कि इस सारी चीज को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. तो उस बंदे ने ये बताया कि बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है, मेरी पे भी कम है, मेरे बेनिफिट्स भी कम हैं, सारी चीजें इंडस्ट्री से कम है, बट इज वन थिंग दैट आई रिमेंबर ईच ऑफ माय एम्प्लॉइज नेम्स. तो 1200 बंदे का उसने नाम याद किया हुआ था. जब भी वो किसी को बुलाता था उसके नाम से बुलाता था और उसको पता होता था कि ये कौन बंदा है, अंदाजन कब आया है और इसकी क्या प्रॉब्लम्स है. बट वो कहता है मैं 1200 बंदे के साथ अपना नाम याद रखा और उनके साथ मैं जब भी कॉन्वर्सेशन करता हूँ फ्रीक्वेंटली तो मैं उनके नाम से उनको याद रखता हूँ. इसी तरह जो जीई है, इसका कोई ऐसा सीईओ आया था, वो भी केस स्टडी में किसी में था. ये क्या करता था, ये अपने फॉर एग्जांपल इसके अगर यूनिट में 3000 एम्प्लॉइज होते थे तो ये कोशिश करता था कि हर एम्प्लॉय के साथ, एक या दो एम्प्लॉइज के साथ, इसने डेली का एक काम रखा हुआ था कि इवनिंग की जो इसकी टी ब्रेक होती थी या कॉफी होती थी वो किसी एक एम्प्लॉय के साथ इसने बैठ के पीनी होती थी, सीईओ ने. और एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि इसका मैनेजर होगा, इवन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर इस बंदे के साथ भी ये बैठ के और कॉन्वर्सेशन करता था, उसका नाम पूछता था, सारी बात उससे करता था. सो इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है या इफेक्टिव लीडरशिप है, उसमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा रोल है. तो लेवल 2 पे आप एक्चुअली रिलेशनशिप मैनेज कर रहे होते हो, रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे होते हो. लीडर्स में भी tempted to stop at level 2. बहुत सारे लोग जो हैं वो लेवल 2 पे स्टॉप कर जाते हैं. but there is more to leadership than just relationships. अब इसकी अपसाइड्स क्या हैं और डाउनसाइड्स क्या हैं. लेवल 2 लीडरशिप की जो फर्स्ट अपसाइड है दैट इज लीडरशिप परमिशन मेक्स वर्क मोर एंजॉयबल. लोग अब अपना काम एंजॉय करने लग जाते हैं. लेवल 2 लीडर्स शिफ्ट फोकस फ्रॉम मी टू वी. Since level 2 leaders put their focus on relationships and winning people over with interactions, this creates a positive working environment. So ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि आपका कल्चर, आपका एनवायरनमेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है. Leadership permission increases the energy level, and when you spend time with people you know and like, it gives you energy. अगर आप जनरली देखे जाएं तो when you spend time with people who you like, you gain energy. इसी तरह अपने लीडर के साथ भी you start gaining energy. Leadership permission opens up channels for communication.
And level 2 leadership, listen to their people and in turn their people listen to them. और इसमें एक वो फॉर्मूला बताता है, listen, learn and lead. उसके बगैर वो कहता है कि काम नहीं चल सकता. आपको पहले लिसनिंग करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, and then you can lead, otherwise you cannot lead. Fourth thing is that leadership permission focuses on the value of each person. Good relationships are built when people value and respect one another. ये चीज हो जाती है. And then leadership permission nurtures trust. In order to maintain these essential relationships, trust must be built. ये सारी चीजें करने के लिए आपका ट्रस्ट होना लाजमी है. लीडर को अगर ट्रस्ट करने लग जाए लोग, तो दे फील मोर कंफर्टेबल टू वर्क फॉर द लीडर. इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन अच्छी बातें जो हैं वो आउटवेट कर जाती हैं नेगेटिव्स को. प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और कैसे आपको इससे केयरफुल रहना पड़ता है. परमिशन लीडर्स अपीयर टू बी टू सॉफ्ट फॉर सम पीपल. कुछ लोग इसका नेगेटिव एडवांटेज भी ले सकते हैं, कुछ फॉलोअर्स आपके इसको मिसयूज भी कर सकते हैं. And for you, leading by permission can be frustrating and for achievers. जिनको काम बहुत जल्दी जल्दी करने की और अचीव करने की आदत होती है, they cannot go along with people. They cannot take people with them. तो वो अकेले जा रहे होते हैं. स्पेशली जो अचीवर्स होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोगों के साथ चलना. परमिशन लीडर्स कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ. ऑब्वियसली आप हम कह रहे हैं रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो यस, पीपल डू टेक एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट एंड अ रिलेशनशिप बिल्डिंग पर्सन. परमिशन लीडर रिक्वायर्स ओपननेस टू बी इफेक्टिव. इसका खुद का जेन्युइन होना बड़ा लाजमी है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं हो सकते. वो कहीं कुछ और हैं, कहीं कुछ और हैं. दैट इज व्हाई इट इज चैलेंजिंग. And then permission leadership is difficult for people who are not naturally likable. आप लीडर हैं, लेकिन आपके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना ही नहीं चाहता. आप जितनी मर्जी कोशिश करते हैं तब भी इशू बन जाता है. You cannot achieve this level. And then permission leadership focus you to deal with the whole person. प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे में कोई ना कोई वीकनेसेस होंगी, कोई ना कोई इश्यूज होंगे, कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम्स होंगी. तो जब आप लेवल 2 अचीव करना चाहते हो, तो आप पूरे पैकेज के साथ डील कर रहे होते हो. बंदे के साथ उसकी प्रॉब्लम्स को भी साथ लेके चलते हो, उसकी अच्छी बातों को भी देखते हो, उससे काम करवाना भी होता है, उसकी बात सुननी भी होती है. तो इट्स नॉट कि आप सिर्फ उससे काम करवा रहे होते हो, यू आर आल्सो टेकिंग ब्रंट ऑफ हिज और हर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी एंड ह्यूमन. सो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं. इस पे जो बेस्ट बिहेवियर्स हैं लेवल 2 पे, दे आर दैट हाउ कैन यू गेन पीपल्स परमिशन. फॉलोइंग इज द सजेस्टेड टिप्स. Connect with yourself before trying to connect with others. Know yourself. You must know yourself first. Be honest with yourself. Change yourself first before trying to change others, and take the responsibility for yourself. तो ये नहीं है कि आपको अपना पता नहीं है और आप रिलेशनशिप बिल्ड करने चले और आप लोगों को मैनेज करने चले. So you need to be very clear about what kind of person you are. Develop a people-oriented leadership style. Use a personal touch. Listen, learn, and then lead. Talk to your people. Practice the golden rule. Treat others as you want others to treat you. And then become a chief encourager of your team. Encouraging words go a long way. आपको हमेशा उनको encourage करना है. Failure, जिस तरह last time में हमने बात की कि failure हो भी जाए तो कोई बात नहीं. You need to focus on the success part and the better part, and strike the balance between care and candor. It is in leaders' best interest to show care and candor to others, but the problem is just having one or the other is not enough. There must be a balance between two in order to maintain these positive relationships.
तो जब आप उनकी ख्याल कर रहे हैं, साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप किसी किस्म की कोई जजमेंट जो है वो भी साथ साथ रखें कि कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे। आपको उनके साथ, जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, टफ एम्पैथी वाला काम करना पड़ता है। उनकी केयर तो करनी पड़ती है, बट साथ साथ उनको जरा ऑनेस्ट रह के ओपिनियंस भी देने पड़ते हैं कि कहाँ वो गलत है, कहाँ वो ठीक है, तो इसका बैलेंस कर लें। ये हम लास्ट पढ़ लेते हैं स्लाइड, एंड देन हम उस पर फिर चलते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है आज का, उधर का, लीडरशिप का। इस लेवल पे आपको मजीद अपना लेवल बेहतर रखने के लिए रिलेशनशिप्स अलोन आर नॉट इनफ, बिकॉज अब आपने लेवल 2 से लेवल 3 की तरफ मूव करना है। देयर इज मोर टू रिलेशनशिप देन इन्फ्लुएंस। नाउ यू हैव टू टेक योर पीपल समवेयर एल्स। अब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, यू आर गुड विद देम, दे आर गुड विद यू, दे आर लिसनिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू देम, बट दैट्स नॉट इनफ, बिकॉज आपने इवेंचुअली रिजल्ट्स चाहिए ना आपको। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप रिक्वायर्स टू-फोल्ड ग्रोथ, as well as growing towards each other. People must grow with each other. So आपकी रिलेशनशिप से बेहतर होते होते आप पर्सनली दोनों लोग ग्रो भी कर रहे हो, काम भी हो रहा हो, प्रोडक्टिविटी भी हो रही हो। Achieving the vision as a team is worth risking the relationship. अब यहाँ थोड़ा सा ये भी कह रहा है एक पॉइंट, आपका रिलेशनशिप से ज्यादा जो आपका विजन है वो मैटर करता है, जो आपने अचीव करना है। बिकॉज कई दफा ये भी हो जाता है कि आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक बंदे से काम ही नहीं ले सकते। अगर ऐसा पॉइंट आ जाए कि आपको रिलेशनशिप सेव करनी है और दूसरी तरफ आपको विजन अचीव करनी है या गोल अचीव करना है, देन इट इज ओके टू सैक्रिफाइस रिलेशनशिप। मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 बंदा काम कर रहा है, हर 100 बंदा अच्छा नहीं होगा, उसमें 3 लोग बुरे भी होंगे। तो इन 3 के साथ अगर आप रिलेशनशिप नहीं भी रखते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज ये आपको हेल्प की बजाय डिट्रैक्ट कर रहे थे आपकी विजन अचीव करने से। उसमें फिर आपको बिगर पिक्चर देखनी पड़ती है। तो कई दफा सम पीपल लीडर इज नॉट अ गुड लीडर, बिकॉज उसका लीडर का नेगेटिव इफेक्ट उस पर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को, तो ऐसा बंदा जो कोई अनएथिकल चीजें कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आपने उसको निकालना है, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं इसको निकालूंगा तो मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। सो है वहां रिलेशनशिप खराब होता भी है तो कोई ऐसा खास मसला नहीं है, होने दें। और लेवल 2 लीडर्स जो हैं वो किस तरीके से सोच रहे होते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर अप्रोच होती है, आई विल कम टू यू अप्रोच होती है, व्हाट डू यू थिंक आस्किंग मैनर होता है, कोऑपरेशन होती है, टुगेदर वी कैन विन टाइप चीज होती है, सर्वेंटहुड थोड़ी बहुत आना शुरू हो जाती है, एंड आई वांट टू ऐड वैल्यू टू यू, इनकरेज करना शुरू हो जाते हैं लोगों को आप, एंड लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स। सो you start talking to people and people start talking to you is at level 2. मैं ख्याल इसको इधर खत्म करते हैं, अपने आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं एंड उससे डिस्कस करके फिर बाकी चीजें करते हैं।
जी, इस पे अब थोड़ा सा जरा बताना शुरू करें कि इसमें क्या पड़ा और क्या हालात है। सर बेसिकली क्रूसिबल्स जो हैं ये ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स हैं। वो नॉर्मली अनप्लान्ड होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि वो एक काफी इंटेंस और एक ट्रॉमा जो है ना वो एक इम्प्रिंट कर देते हैं आपकी मेमोरी के अंदर या फिर आपके थॉट प्रोसेस के अंदर, जिससे आपकी लीडरशिप जो है वो फिर इन्वोक होती है या रिफाइन होती है। ठीक, अब इस आर्टिकल में इसने 5-6 स्टोरीज दी हैं। सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। पहले हम जो क्रूसिबल का लिटरल मीनिंग है वो अगर क्लियर कर लें ताकि थोड़ा सा हमें इमेजिन करना आसान हो जाए ना। सर उसके बारे में थोड़ा बताऊं? जी, अब अगर वैसे सबने आई होप पढ़ा होगा। सर एक्चुअली इसका जो मेन थीम ली गई है वो उससे ली जा सकती है कि अगर हमने सोने को किसी चीज में ढालना हो या हमने लोहे को किसी में ढालना हो तो उसके लिए जो सांचे होते हैं एक्चुअली उस चीज को इसमें डिस्कस किया गया है वो कि क्रूसिबल आपका सांचा जैसा होगा उसको सर वो कहते हैं, तो आप उसी तरह ढल जाओगे। तो बेसिक थीम ये है सर। एक्चुअली वो जो हमारे पास सांचा होता है जिसमें चीजें मेल्ट करके लोहे को या किसी मेटल को मेल्ट करके शेप अप किया जाता है उसको क्रूसिबल्स कहते हैं। तो अभी जी अहमद हसन साहब अब आप बताएं जी सर, बिल्कुल कैसे अप्लाई कर रहा है। बिल्कुल सर, इसमें वो हमारे भी यहाँ पे लोकल मिसालें बड़ी हैं ना कि वो कुंदन बनने के लिए जो है वो आपको जलना पड़ता है उस सांचे के अंदर। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट फ्रेज, बट इसी तरह का उसका कुछ मीनिंग आता है। तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से जो बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो बकर भी, कि क्रूसिबल एक बेसिकली आपका एक मेटल कंटेनर है जिसके अंदर आप जो है वो शेप अप करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे भी इसको इसी तरह रिलेट किया हुआ है ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स, जो मैंने कहा, जो काफी इंटेंस और ड्रामेटिक हैं। और इनकी खासियत ये अनप्लान्ड है, ये कोई इंटरवेंशन या फिर कोई प्लान करके नहीं आप करते, ये हो जाती हैं चीजें, जिसकी उसने फिर एग्जांपल्स भी काफी सारी दी हुई हैं, स्टार्टिंग विद द स्टोरी ऑफ सिडनी हरमन। बेसिकली वो एक अपनी वर्क प्लेस के ऊपर एक रिबिलियन स्टार्ट हो गई थी फॉर ब्लैक पीपल, जो उसके काम कर रहे थे लोग। तो स्टोरी बेसिकली यही थी कि they wanted to take a break from work and उन्होंने एक rules and regulations basically set किए हुए थे, and one person stood up to them and said that I will only take break when I want to. So वहां से जो है ना एक rebellion, workplace rebellion start हुई थी, जिससे वहां से उसको समझ आई कि हाँ भी आपको पार्टिसिपेटिव रहना पड़ेगा और लोगों को इन्वॉल्व करके एक लीडरशिप स्टाइल थोड़ा सा अपना जो है ना वो मेंटली चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसमें खवातीन का कुछ जिक्र किया गया हुआ। एक स्टोरी है सैबर्ट की, शी इज अ वुमन एंड जू, शी वाज वर्किंग इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। उसने अपनी डिफिकल्टीज काफी बताई हैं, दैट वाज 2 levels which was at that point of time quite unacceptable in the society. तो वहां पे भी इसी बात से वो कितनी सक्सेस हासिल की है, इस नेगेटिविटी की वजह से भी। और इसी तरह फिर एक वर्नन जॉर्डन है, वो एक ब्लैक शोफर थे एक मेयर के, जो कि बड़ा एक रेसिस्ट किस्म का मेयर था, मैडॉक्स उसका नाम था। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, ओवरऑल बताया गया है कि आगे जाके कि क्रूसिबल्स कैन आल्सो बी टेकन पॉजिटिवली। और उसमें फिर 1-2 स्टोरीज बताई हैं। एक मैनॉर्ड डिकरसन की है, first black prosecutor who had a very positive mentor which basically led him to become successful. And then there is Michael Clean, जो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होके जो है एक रियल स्टेट टाइकून बन गया। सो बेसिकली ये इवेंट्स, जो भी अनप्लान्ड ऐसे इवेंट्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, कोई ना कोई इम्प्रेशन छोड़ते हैं इंसानों पे, जो कि इवेंचुअली अपना लीडरशिप स्टाइल फॉर्म करते हैं या चेंज करते हैं। That was the main theme of the article which I understood. ठीक है, ओके। सो इसने स्टार्ट किया है जो एबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन नेगेटिव इवेंट्स, उस पे कोई और अगर हमें मजीद बताए कि क्या मतलब है और क्या इसका तरीका है।
सर इसमें उन्होंने इस चीज को एम्फेसाइज किया है कि लीडरशिप स्टाइल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट जो उसका ट्रू एसेंस होता है किसी भी एक किसी की लीडरशिप क्वालिटी को देखना हो कि वो नेगेटिविटी में कितने पॉजिटिव वाइब्स को निकाल सकता है, कितने एडवर्सिटी में अपने आप को उस प्रोसेस से गुजरने के बाद लर्निंग में किन चीज़ों से वो इवॉल्व हो सकता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन है अगर हम बाकी लीडरशिप स्टाइल के साथ इसको देखें कि इसमें नेगेटिविटी में रह के, एडवर्सिटी में रह के, स्ट्रगलिंग फेज में रह के, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में रह के आप इवॉल्व होते हैं और उससे पॉजिटिव चीजें लेके निकलते हैं। ये एक डिफरेंशिएशन आती है इसमें। ठीक सर इसमें सर एक फिर वाकया भी उन्होंने कोट किया हुआ है कि जो बंदा एक प्रिजन में गया था, मुझे नाम अभी उसका माइंड में नहीं आ रहा, जिसमें उसने सबसे पहला चाइना के अंदर उसने अपने उस टाइम को पॉजिटिविटी में यूज़ किया और किताबें मंगवाई और अपने आप को चीज़ों को पढ़ के अपने आप को एजुकेट किया इन लाइट ऑफ कैंडल्स। उसका नेगेटिविटी का उसने अपने आप को पॉजिटिविटी में चेंज किया, तो उसका जिक्र हुआ है सर। और शुरू में जो स्टार्ट जो उन्होंने किया हुआ है वो एग्जीक्यूटिव का किया हुआ है सिडनी हार्मन के बारे में, जो कि हार्मन कार्डनर में जॉब कर रहा था और एक और जगह पे, जिसने सबसे पहले ये कन्फ्रंट किया था प्रॉब्लम कि वो जो ये अहमद ने भी बात की कि ये लोग काम कर रहे थे तो उस वक्त फॉर सम रीज़न आपका बजर नहीं बच सका। तो उसके बाद उसके अंदर बड़ी प्यारी लाइन है कि द टेक्नोलॉजी इज देयर टू सर्व द मैन नॉट द रिवर्स। तो इस चीज़ को सर उसने बड़ा पॉजिटिविटी से लेते हुए और जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वगैरह और इन चीज़ों के अंदर वो कॉन्सेप्ट को जिक्र किया गया इसका। Although it was a crisis and it was a negative event, जी सर, लेकिन उसको उसने पॉजिटिव में लेके गया सारा, उसने उसको पॉजिटिव में ले लिया। नेल्सन मंडेला का जो अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा हो तो उसका जो जेल वाला जो इस बंदे ने एग्जांपल दी हुई है और उसकी लाइफ का तकरीबन सेम ही बनती हैं चीजें। उसको भी जब 25 इयर्स इम्प्रिजनमेंट हुई तो उसने उस इम्प्रिजनमेंट को यूज किया एंड ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि कोई और बंदा होता तो शायद उसमें वो उसको नेगेटिविटी में ही रह जाता। उसने वहीं बैठे लॉ भी किया, वहीं बैठे उसने अपनी मूवमेंट भी चलाई, सारा कुछ किया, बट नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ले आया। शायद हम लास्ट टाइम भी किसी वक्त बात की हो कि यू शुड हैव द एबिलिटी टू टर्न योर फ्रस्ट्रेशन इनटू फैसिनेशन। बल्कि सर इसमें एक चीज ये भी मेंशन है कि उन्होंने 100+ जो बहुत लीडिंग लीडर्स थे अपने हिस्ट्री के, उनकी जब उनको स्टडी किया तो ये चीज इवॉल्व हुई या ये रिफ्लेक्शन में आया कि वो उन लोगों की लाइफ कोई बहुत इजी गोइंग लाइफ नहीं थी, उनकी बहुत स्ट्रगलिंग थी, उनकी जिंदगियों में बहुत सी एडवर्सिटी डार्क एरियाज आए जिनको उन्होंने गो थ्रू करके बेस्ड ऑन दैट लर्न किया और फिर उन्होंने वो इतने रिनाउंड हुए और इतने इफेक्टिव हुए। तो ये चीज भी उन्होंने बहुत हाईलाइट की है। और इसमें जब भी आप किसी को भी बल्कि मैं कहूँगा किसी भी अच्छे बिजनेस को देखेंगे, किसी भी अच्छे बंदे को देखेंगे, अच्छे मीन सक्सेसफुल बंदे को, यू विल ऑलवेज फाइंड अ स्टोरी बिहाइंड इट। बहुत बड़ा ये एलिमेंट होता है किसी भी चीज की सक्सेस में कि स्टोरी उसकी कोई ना कोई होती है, तब वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। और हम सबका प्रॉब्लम ये है कि उस स्टोरी से डायरेक्शन लेने की बात है कि आप पॉजिटिवली इमर्ज करते हो स्टोरी से या नेगेटिवली। तो नेगेटिवली तो 90% लोग वो डिक्लाइन कर ही जाते हैं अपनी लाइफ को, बट उसमें से जो 10% पॉजिटिविटी लेके उठते हैं देन दे बिकम समथिंग। जी 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 अली सर इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लूंगा जो आपने आज भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि सर ये जो सारे इंसिडेंट्स हैं, कोई वाकयात हैं, इससे पहले मोस्ट ऑफ दोस्त लीडर्स जो भी वो लोग थे, अगर हम आज वाली बात करें तो वो एक किस्म के पोजिशनल लीडर्स थे। कोई ऐसा वाकया हुआ और सर वो जो क्रूसिबल्स की हम बात कर रहे थे, क्रूसिबल भी यही है कि उसको तकलीफ से गुजरना पड़ता है। बेसिकली जब पुराने अल्केमिस्ट्स वगैरह सोना बनाने की कोशिश करते थे तो वो एक टेम्परेचर में अचीव करने की कोशिश करते थे कि जो बेस मेटल्स हैं वो एक खास टेम्परेचर जब पहुंचेगा तब वो सोने में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह बिल्कुल एक लीडर्स भी हैं, वो एक बेस मेटल्स में होते हैं, उनको एक खास मुश्किल टाइम से गुजरना पड़ता है फिर सोना बनने के लिए। बिल्कुल। और उसमें सर इसमें दूसरी चीज ये है कि एक और इसने इसी में शायद यूज की हुई है कि राइजिंग लाइक अ फिनिक्स। जैसे वो फिनिक्स सर वो ग्रीक मेथोडोलॉजी में यूज किया जाता है कि फिनिक्स जो है वो एशिस से दोबारा एक वो
मिथिकल सा वर्ल्ड है, वो एशेस से दोबारा राइज करता है। तो बिल्कुल इसी तरह लीडर्स को भी उन्हीं मोस्ट ऑफ द टाइम मुश्किल टाइम से ही गुजर के वो लीडर वो एशेस से जब दोबारा राइज करता है, तब उसका आउटलुक है लीडरशिप पे, लाइफ पे, हर चीज पे वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, विदाउट डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। इसमें मुझे बताएं कि एक जो उसकी जापानीज की स्टोरी है, जापानीज वुमन की, उसको कैसे आप समझते हैं और क्या उसमें लेसन्स क्या हैं, एंड हाउ डिड शी ऑपरेट व्हेन शी वाज इन जापान एंड अकेली इंजीनियर चली गई एंड सब कुछ, व्हाट वाज दैट स्टोरी अबाउट? सर मैं आए जी सर बेसिकली वो यही था कि ये बंदी ऑल्टमैन जो थी अमेरिकन, शी वेंट टू जापान एज एन इंजीनियर, और उस टाइम पीरियड में जब ये गई है तब ज्यादा औरतें इंजीनियर्स वहाँ पे नहीं थी, एंड शी हैड अ टफ टाइम डीलिंग विद द डिफरेंट कल्चर एंड एवरीथिंग। और इसको वहाँ पे समझाया गया था कि इफ यू डील विद इफ यू यानी कल्चर उसके हिसाब से कि लड़कियों के साथ ज्यादा नहीं बैठना, दे वोंट एक्सेप्ट यू द वे यू आर वर्किंग एंड एवरीथिंग, ऑलरेडी इतने मसले थे इसको। And then after a time period, और लड़कियां engineers started joining this company, and instead of listening to those rebuttals and everything, she started sitting with the women and आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मर्दों में भी, यानी उनके इंटरेस्ट, जैसे उसमें लिखा था कि माउंटेन बाइकिंग के बारे में, कि she got to know कि the men they like mountain biking, तो उसने जाके पूछा कि I want to buy something like that। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में कभी वो लड़कियों के साथ बैठना, कभी मर्दों के साथ बैठना, यानी उसने वो जो एक बैरियर सा था वो उसने तोड़ दिया। एंड द वुमेन इन दैट सोसाइटी, वन ऑफ द नॉट मुझे उस बंदी का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं याद, शी इंट्रोड्यूस्ड हर अमंग्स्ट the society and everything, and later on जब वो मोटोरोला में गई, and then she was looking after everything, यानी रीजनल ऑपरेशन से लेके हर चीज को देख रही थी। तो उसका ये एक्सपीरियंस वो बताती है कि अगर मैं उस तरह से अपने आप को लेके ना चलती, अगर डिफरेंट कल्चर में और अगर डिफरेंट कंट्री में जाके काम ना करती, तो शायद आज मैं उस पोजीशन पे या उस तरह काम ना कर पाती मोटोरोला में जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ। ओके, सो इसमें एक और चीज ऐड कर लूं? जी जी अबकर सर उसमें उनको मना भी वैसे किया गया था कि आप जरा, क्योंकि मैन डोमिनेटेड थी, तो कहा गया था कि मेंस के साथ ही आप उठें बैठें, लेकिन उसने स्टार्ट में फीमेल्स के साथ भी इंटरेक्शन किया था। तो जो उसकी एक्सेप्टेंस की मेन वजह बनी थी वो वही फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन था, जिसकी बाद में शादी हो गई थी, और उसने उसको सारा कुछ इन्वॉल्व करवाया था इन दिस ना। ठीक, बट उसका वो जो एक डिसीजन था व्हेन व्हेन इन द वेरी बिगिनिंग जो ग्रुपिंग हो रही थी, और ग्रुपिंग में उसने इनविटेशंस थी और इग्नोरेंस थी, उसको वो कैसे डील किया था और उसको वो कैसे हेल्प किया उसको? सर तो वेरी फर्स्ट डे जब वो उस एक अपनी ब्रेक में गई थी, तो जो जेंट्स थे, जो मेल इंजीनियर्स वगैरह थे, वो तो अपनी जगह पे बैठे हुए थे, लेकिन जो फीमेल्स थी, जो स्टाफ था, उन्होंने उसके लिए एक सीट खाली करके रिजर्व करके रखी हुई थी कि ये यहाँ आएगी और यहाँ बैठेगी। बट जैसे एक नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियर्स के साथ बैठेंगे और जो स्टाफ है वो अलग बैठेगा। अगर वो ये काम ना करती कि फर्स्ट डे, द वेरी फर्स्ट डे, अगर वो उनकी ऑफर एक्सेप्ट ना करती, उनको रिफ्यूज करती और जो इंजीनियर्स हैं, जो हाई स्टाफ हैं, उनके साथ जाके बैठती, तो ऑब्वियसली वो जो सारा प्रोसेस बाद में हुआ, जिस फीमेल ने जो एक इंजीनियर की वाइफ थी उसने इंटीग्रेट करवाया, तो वो फर्स्ट डे अगर वो ना करती तो ये सारा प्रोसेस बाद में ना हो सकता। तो वो ऑटोमेटिकली पहले दिन ही अपने आप को आउट ग्रुप कर लेती उनसे। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये होती कि देखो ऑलरेडी मैन डोमिनेंट सोसाइटी थी और मैन उसको कुछ ज्यादा वो वेलकमिंग नहीं थे उसके लिए, तो वहां से तो वो ऑलरेडी आउट थी। बट विमन से वो पहले दिन ही आउट हो जाती अगर वो उनकी ऑफर एक्सेप्ट ना करती। तो दोनों सूरतों में उसको कुछ भी ना मिलता, ना तो उसको मेन साइड से रिस्पेक्ट मिलती, इंक्लूजन मिलती, ना उसको विमेन साइड से मिलती। तो देन शी कॉन्शियसली डिसाइडेड कि अब ये सिचुएशन में मैंने करना क्या है। एटलीस्ट उसने एक साइड की जो है वो सपोर्ट रखी, और वो सपोर्ट बाद में उसके इतने काम आई कि देन शी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द मेल ग्रुप एज वेल। एग्जैक्टली सर इसमें छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा कि उसने सर ये देखा कि फर्स्ट फीमेल इंजीनियर थी, दैट वाज द फर्स्ट सिचुएशन फॉर दैट फीमेल स्टाफ एज वेल, कि आज से पहले कोई फीमेल इंजीनियर भी नहीं थी, अब किसी को नहीं पता था कि वो क्या करेगी। दैट वाज अ स्टीरियोटाइप कि इंजीनियर्स जो हैं वो अलग बैठते हैं, जो स्टाफ है वो अलग बैठता है।
मेल्स जो हैं वो अलग बैठते हैं, फीमेल्स हैं अलग बैठते हैं, और फीमेल कभी इंजीनियर हो ही नहीं है आज से पहले। तो एक देर वाज न्यू सिचुएशन, एक स्टीरियोटाइप पहले ही बना हुआ था, तो उसने उसको भी ब्रेक किया उसके साथ कि मैं इंजीनियर भी हूँ और मैं जो हूँ वो फीमेल्स के साथ बैठूंगी, और उन्होंने उसके लिए एक्सेप्टेंस रखी हुई थी। मेल तो ऑब्वियसली डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उसने एक किस्म का उस स्टीरियोटाइप को भी तोड़ा, एंड दैट वाज द फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक और वर्ड यूज हुआ था और वो भी उसको भी इन्होंने रिलेट किया हुआ स्टोरी में, एंटी सेमिटिज्म। उसका कोई मुझे बताएं। इट इज 103 पेज। उसकी क्या समझ आई और क्या है? सर ये वो ज्यूज के साथ जो एक डिस्क्रिमिनेशन होती है बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, तो वो है, क्योंकि ये 1950s और 60s की बात कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम एक तो लेडीज फीमेल जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में उस तरह थी नहीं, दूसरा ज्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती थी बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। तो उस बेस पे वो जो एक मुझे उनका नाम आई गेस सिबर्ट थी, वो उनको फर्स्ट थी, और उनके साथ नॉर्मली जब किसी के साथ वो डिस्कशन करती थी तो उन्होंने एक किया भी ऐसे ही कि जब उस दौर में जब वो एक डिस्क्रिमिनेशन होती थी, और जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनके साथ अगर वो लंच कर रही हैं, ड्रिंक्स पे जा रही हैं, तो उसके बाद अगर वो उनके बारे में, उनके रिलीजन के बारे में अगर वो ऐसी बात करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे किया कि अपना रिलेशनशिप जाया नहीं किया, उसको कॉन्फ्रंट करके कि भाई आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और उसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाए। तो वो क्या करती थी कि वो उनके साथ लंच के बाद उनको एक कार्ड या फ्लावर्स भेज देती थी, और उसके साथ कार्ड था, और कार्ड के अंदर एक उन्होंने पोइट्री यहाँ पे लिखी हुई थी कि जिसमें वो बता देती थी कि मैं जियो हूँ। तो उसके बाद आई लाइक हैविंग, आई एंजॉयड द लंच, आई एंजॉयड द ड्रिंक्स। तो उसके बाद क्या होता था कि नॉर्मली वो लोग दोबारा फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं करते थे, जब देखते थे कि ऐसे लोग नहीं हैं, कि हम इनके बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, तो वो प्रोसेस नहीं होता था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो रिलेशनशिप्स बचा लिए, उन्होंने डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करके वो रिलेशनशिप जाया नहीं किए, जैसे नॉर्मल एक प्रैक्टिस है कि होता है कि जब आपका किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, आपसे लड़ाई करते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो शायद दोबारा ना करे, लेकिन वो रिलेशनशिप भी आपके साथ जाया हो जाता है। बिल्कुल सर, इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसकी बहुत रिएक्टिव अप्रोच नहीं थी, बहुत उसने सुकून से, मतलब वो जो पोइट्री है कि रोजेस आर रेडिश, वायलेट्स आर ब्लूइश, इन केस यू डोंट नो आई एम जूइश, तो उसने बहुत तरीके से उनको मतलब टाइम भी स्पेंड करने के बाद, और वो कहते हैं ना कि आप अपने बिहेवियर से दूसरों को चेंज करो, जुबान से खाली बोलने से नहीं। जब वो लोग बिहेवियर से उसने अपने आप को चेंज किया कि वो मतलब एरोगेंट नहीं हुई या कोई बदतमीजी नहीं, क्योंकि उसने खुद अपनी एक्सेप्टेंस लेके आनी थी, और वो सारा कुछ वो अपने बिहेवियर से लेके आई। एंड देन इवेंचुअली शी वाज वेरी सक्सेसफुल। उसने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया, इन सारी चीजें जो है उसके लिए ज्यादा बेहतर होगी जी। तो ये भी हो गया बिल्कुल सही। अबीर बच्चे आपने पढ़ा हुआ है? अबीर, फातिमा, वजी, जैनब, सबा? नहीं सर, ये वाला नहीं पढ़ सकी मैं, आई एम सॉरी। ठीक हो गया। मुझे बताएं कि एक इसमें आगे जाके उसने एक छोटी सी पोइम की स्टांजा यूज किया हुआ है, आउटविटेड पोइम। वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की एंड कैसे? कोई भी बता दे। सॉरी सर, जरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, सुन नहीं मैंने सका। कहा कि उसने पोइम का स्टैंजा यूज किया, 108 पेज पे, आउटविटेड वो है ये वाला। ये हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा एंड हाउ डिड दे यूज इट? सर ये वही जो चाइनीज, चाइना में जो, मुझे उनका नाम सर सॉरी से निकल गया, कोई नहीं, हाँ, नाम का कोई इशू नहीं। ठीक है, वो सर जो उनको वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की गई थी फर्स्ट टाइम, के
वो उनको अपने पॉलिटिकल व्यूज की वजह से उनको इम्प्रिजनमेंट की गई थी, और उस बेस पे जब उनको जेल में डाला गया था तो वहां पे उनको एक बचपन में उनको एक सिखाया गया था, जो ये स्टेंजा है 4 लाइन का, उसका मतलब यही समझ आता है कि जो ओपोनेंट्स हैं दे ड्रू अ सर्कल दैट शट मी आउट, कि उन्होंने अपना एक सर्कल बना लिया, उसमें से हमें बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो हम अपना करके, जैसे एंड पे शायद एक लीडरशिप की इसमें क्वालिटीज में भी आती है एक चीज उसी में, कि आप लोगों को शेयर्ड मीनिंग दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताएं। जैसे इन्होंने ये किया कि इन्होंने गार्ड्स वगैरह को अपने बिहेवियर से, अपने जो व्यूज से अपनी तरफ खींच के लेके आए। तो वी ड्रू अ सर्कल बट लव एंड आई हैड द विट टू विन, के मतलब अच्छे बिहेवियर से, विद द पावर ऑफ लव और अपने जो बिलीव्स हैं उससे फिर हमने सर्कल किया। उन्होंने हमें तो अपने सर्कल से बाहर निकाल दिया, बट हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें हम उनको लेके आ गए अपनी तरफ। बिल्कुल, So that's what I बजाय इसके कि उन पे डिपेंडेंट रहे आप, एक तो इससे वैसे भी इंकरेजमेंट ये मिलती है कि आप इतना काम कर सकें या आप इतनी बेहतरी कर सकें कि वो आपका सर्कल ज्वाइन करना शुरू कर दें। सर इसको हम लोग एक और इसी पेज पे सर नीचे एक स्टेटमेंट है उसके साथ लिंक करके भी कर सकते हैं कि इट्स अबाउट यू, कि आप अपनी सिचुएशन को किस तरह लेते हैं। कि लिखा हुआ है दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, इट्स अ फंक्शन ऑफ योर आउटलुक ऑन लाइफ, कि आप अपनी लाइफ को किस तरह लेके चलते हैं। जिस तरह सर एक बहुत अच्छा कमर्शियल है, वो मेरे ख्याल से सारों ने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि एक साइकिल वाला थोड़ा सा देखता है कि बाइक वाले को एडमायर करता है, बाइक वाला गाड़ी को, गाड़ी वाला उससे अच्छी गाड़ी को, उससे अच्छा वाला हेलीकॉप्टर को। और जब अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो जब चलने वाला से स्टार्ट होता है तो जब वो देखता है कि एक बंदे के पास पाँव ही नहीं है तो उसका थिंकिंग एकदम चेंज हो जाती है कि हाउ यू टेक योर लाइफ। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल वो भी ठीक है इसमें। फिर इसमें इन्होंने एक अपने रिसर्च वाइज जो बात की है गीक्स एंड गीजर्स, वो उसमें कुछ एज और उसके डिफरेंसेस बताए हुए हैं, उसका क्या मतलब है? कैसे लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट हैं, या जो भी चीजें इनकी डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर एजेस। सर मोस्टली इन्होंने इसमें ये चीज बताई थी कि इसमें 2 ग्रुप्स उन्होंने लिए थे, जो एक 25 से पहले वाले लीडर्स थे और दूसरे जो एक डिफरेंट एज ग्रुप के थे। तो मोस्टली उनकी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज उन्होंने ये देखी थी कि ये सबसे पहले जो है वो नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, सीखना, लर्निंग कभी खत्म नहीं करते। बिल्कुल कि वो हर टाइम पे फिर डिफरेंट, इन्होंने सर डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई थी कि जो है वो एक 70s की एज में है तो वो विंड सर्फिंग करते हैं, कोई और है तो वो लर्निंग खत्म नहीं करते। ठीक है, चाहे वो जिस मर्जी एज में हो। ये जो खास सक्सेसफुल लीडर्स हैं इनके सबसे मेन चीज यही है कि एक नई चीज, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली जो है वो लर्निंग कभी खत्म नहीं करते। ठीक हो गया। लास्ट एक दो चीजें देख लेते हैं। मीटिंग ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में इन्होंने क्या चीज एक्चुअली बताई है? उसमें सर इन्होंने इसको कंक्लूड किया है इस पूरे केस को कि क्रूसिबल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते, ये ऑल द टाइम आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करते। इसमें से बहुत से लोग गुजर के इसको बहुत सी एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिवली रिलेट करके उसको चैलेंज करते हैं और फिर वो उसमें से अपने लिए रास्ते निकालते हैं। बिल्कुल ठीक। सो प्रॉब्लम ये है कि एक इससे रिलेटेड ही लीडरशिप एक इंटरव्यू था, तो उस बंदे ने उससे पूछा कि अगर आप अपना, बिकॉज आपको लाइफ में फेलियर भी हुए हैं, सक्सेस भी हुई है, तो अगर आप वापस जाएं तो कौन से फेलियर्स को अनडू करना चाहेंगे? ये उससे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, तो उसने जवाब ये दिया कि मैं बिल्कुल किसी भी फेलियर को अनडू नहीं करना चाहूंगा। द प्रॉब्लम इज कि मेरी सारी सक्सेसेस जो हैं वो उन फेलियर्स की वजह से हैं। सो फेलियर जो है वो इसका पार्ट एंड पार्सल है। फेलियर के बगैर आप सक्सेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपकी लर्निंग जो है वो
फेलियर से ही होती है। अब इशू क्या होता है हमारे साथ, मेन इशू क्या होता है, हम फेलियर से सीखने की बजाय, लेसन लर्न करने की बजाय उसी में जिंदा रहना शुरू कर देते हैं कि हमारे से फेलियर हो गया और पता नहीं कितनी बड़ी गलती होगी और पता नहीं क्या होगा। सो फेलियर्स को भी आपको एक किस्म का, आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप फेल हों, बट अगर फेलियर्स हो गए हैं, शुड टेक देम एज पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड पार्ट ऑफ योर सक्सेस। सो सारे जी इसमें सर, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो हमारी अप्रोच का है। हमारा पेसिमिस्ट अप्रोच बहुत ज्यादा है, हम ऑप्टिमिस्ट नहीं होते। हमें जी एक फेलियर मिलता है तो हम उसके लिए बहुत पेसिमिस्ट हो जाते हैं, हम सोचते ही नहीं कि हम इसको, इस माइलस्टोन को कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगर बिल्कुल हमारी सोच बदल जाए ना, ये पेसिमिस्ट अप्रोच हमारी लाइफ से निकल जाए, और ये हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा है। बहुत आप ज्यादा किसी के पास बैठ जाएं, इवन अपने इर्द गिर्द बैठ जाएं, अपने पीयर्स में बैठ जाएं, अपने कुलीग्स में बैठ जाएं, उनमें पेसिमिस्ट अप्रोच बहुत ज्यादा है कि ज्यादा है। प्रमोशन होनी ही नहीं तो काम क्यों करें, ये बिल्कुल होना नहीं तो ये क्यों करें। वो जो एक ऑप्टिमिस्ट अप्रोच होती है ना, वो हमारे कल्चर में नहीं है। ये डायलेमा एज एन इंडिविजुअल नहीं है, एज एन सोसाइटी हमें इतना ज्यादा है कि हम ये सोचते ही नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। अगर हमने कभी की बात सोची नहीं, कभी बैठ के, आई थिंक आप लोग यहाँ, हम लोग बैठ के हम बहुत से सोशल इश्यूज पे बात करते हैं नेशनल लेवल पे, लेकिन कभी ये बैठ के किसी ने नहीं सोचा होगा कि नहीं यार, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, हमने किसको बीट करना है, हमने कहाँ जाना है। ये ऑप्टिमिस्ट अप्रोच हमें आई ही नहीं। ये एज अ सोसाइटी हम इस चीज से गुजर रहे हैं, और जब तक हम इस चीज से नहीं निकलेंगे तो यही है कि ये जो क्रूसिबल लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ये डायलेमा से निकल के जो पॉजिटिव एनर्जीज जिन लोगों ने भी ली है, अगर आप कहीं ना कहीं उनको, पहुंच गए। बिल्कुल वो पहुंच भी गए, और वो ऑप्टिमिस्ट थे, वो पॉजिटिव सोचते थे, वो मतलब डार्कनेस में भी उनको लाइट नजर आती थी। बिल्कुल वो एक थिंकिंग अप्रोच थी, माइंडसेट था। इर्द गिर्द तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था उनके। बिल्कुल ऐसी ही, और ये चीजें ऐसे ही रहती हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आज इकोनॉमिक हालात हम पाकिस्तान के बेहतर हो जाएंगे, इस पे आपको पर्सनल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते कोई भी चीज। और आज भी ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी कंट्री में, हर कंट्री में गरीब अमीर लोग हैं, हर कंट्री में सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लोग हैं। सो ज्यादा ये रिलेट करता है हमारे पर्सनल अप्रोच को ही, कि हम कितनी लाइट देखते हैं या कितना बेहतरी चीज में देखते हैं। इसलिए फेलियर से घबराने की या ओवरऑल हर टाइम, जिस तरह आपने कहा, कि नेगेटिव अप्रोच रखने की कोई जरूरत नहीं होती। सर मैं इसमें छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँगा। सर ये इस चीज़ को जब मैं पढ़ रहा था, मैं हमेशा, सर मेरा एक अपना पर्सनल इशू है, और मैं हर तकरीबन जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ पे मैं ज़रूर एक चीज़ शेयर करता हूँ। जब मैं ये भी पढ़ रहा था तो सर मैं इसको लीडरशिप के अलावा हम इसको अपनी लाइफ के अंदर भी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम इस चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर मेरे साथ 2015 में एक इशू हुआ था कि मेडिकल एक प्रॉब्लम हुई थी, एंड फॉर वन डे आई थॉट आई वाज गोइंग टू डाई, कि मैं मतलब खत्म होने वाला। मुझे इमरजेंसी में यहाँ से लाहौर पहुंचाया गया, और मैं खुद अपनी टांगों में ठीक था, मतलब फिर भी एक गाड़ी में इमरजेंसी में पहुंचाया गया शाम तक के, फटाफट पहुंचाओ। माय प्लेटलेट्स वर जीरो, मेरे प्लेटलेट जो थे वो बिल्कुल जीरो थे। उन्होंने कहा कि फौरन इनको लाहौर पहुंचाया, क्योंकि मीरपुर में ऐसी फैसिलिटी थी नहीं। तो सर वो जो पहले कुछ दिन थे जब तक चीजें क्लियर होनी, चीजें आनी कि मतलब कुछ होने वाला है, पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, एक टेंस सिचुएशन में, बट द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू माय हेड कि यार मैं अपने पाँव पे चल के आया हूँ, मैं घर से चल के गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी से हॉस्पिटल से जब उतर के फिर कमरे तक गया हूँ, सब कुछ ठीक है। एंड व्हेन द डस्ट सेटल्ड, जब था कि आई हैड आईटीपी, तो वो मेडिकेशन के साथ मतलब ठीक है चलता है, 5-6 साल हो गए, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। बट सर एक चीज, वो एक एक्सपीरियंस आज तक है कि आज भी अगर कोई मुझे छोटा मोटा मेडिकल डायग्नोसिस या कभी कोई खतरा पैदा होता है किसी चीज का भी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बिकॉज ऑफ वन दैट एक्सपीरियंस कि यार आईटीपी बर्दाश्त कर लिया तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, कोई चीज भी, खैर इससे ज्यादा क्या मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी, इवन कोविड की बात भी होती है सर, नॉट बेहतियाती की बात नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल होता है। जब हमारी भी लास्ट टाइम फैमिली में हुआ तो आई हैड सिम्टम्स, टेस्ट नेगेटिव हुआ बट आई हैड सिम्टम्स, तो मुझे उस तरह परेशानी नहीं थी जिस तरह बाकी सारे लोग घबराए हुए थे। मैंने वो फील किया हुआ था यार कि मतलब मैं उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस तो नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके लिए वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है। तो बीइंग अ पर्सन हु यू आर, लीडरशिप से हट के भी, कि जब भी ऐसा कोई एडवर्स या किसी किस्म का भी कोई एक आपके साथ इवेंट होता है, वो आपको शेप अप करता है, आपकी पर्सनैलिटी को। एग्जैक्टली
आपको एक बहुत, जिस तरह आप रिलेट कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में इन चीजों के साथ डील कर लिया है एंड स्टिल आई सर्वाइव्ड और आई सक्सीडेड, तो बाकी चीजें तो इशू ही नहीं है। इसी ये रेजिलियंस का भी तो एक इम्पैक्ट है ना, कि आप रेजिलियंस भी आपको इसी तरह लर्निंग ही होती है। और लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी रेजिलियंस की है कि आप बड़ी बड़ी चीजों से निकल के भी आप स्टेबल रहते हैं। जी सर, इसमें मैं चीज ऐड अगर करूं, एक बहुत बड़ा फर्क जो मैं देखता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लिविंग अब्रॉड एंड हियर बोथ, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा कुशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी सूरत हाल क्या है। जो एक फैमिली स्ट्रक्चर और एक हमारा एक कल्चर है, और उसके बाद फिर जो चैरिटी का एक सिलसिला हमारे मुल्क में चलता है जो अनकंट्रोल्ड है बिल्कुल ही ना। तो किसी बंदे को पाकिस्तान में कम से कम भूख की प्रॉब्लम नहीं है और सोने की जगह की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस। आप शुरू करें सिंध से बुरे इलाकों में भी, और चले जाएं आप गिलगित बॉर्डर तक भी, चाइना के बॉर्डर तक, वहां पे आपको हर जगह पे फ्री लंगर मिलेगा। आप खुले आसमान के नीचे कहीं पे भी सो सकते हैं। ये बेसिक जो मास्लोज कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल, आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी पूरी है। अच्छा, अब जब ये आपकी पूरी है ना ये चीजें, यू नेवर गेट पुश्ड और बॉदर्ड। आप हमेशा फॉल बैक करेंगे इन इमोशनल चीजों पे, और फिर एक अनफॉर्चुनेटली नेशनल कल्चर बन गया हमारा। अगर आपने पता नहीं गौर किया नहीं सबने, आजकल इश्तिहारों में हर दूसरा इश्तिहार क्या आ रहा है, अपने सदकात और एहतियात इधर दे, फलाने को दे, ढमकाने को दे। मतलब भीख मांगने का ना एक नेशनल कल्चर बन गया हमारा। आई एम नॉट अगेंस्ट चैरिटी, नॉट एट ऑल, लेकिन आप अगर अपनी इकोनॉमी, अपनी पर्सनालिटी, अपना बिजनेस, अपनी गवर्नमेंट, हर चीज आपने चैरिटी के ऊपर ही बेस कर दी है, तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। वो डिपेंड, आप लोगों पे डिपेंडेंट हो गए और आप फजूल सी एक अनश्योर चीज पे डिपेंडेंट हो गए हैं। चैरिटी तो चॉइस है ना। बिल्कुल। अब देखिए सर, ऐसा है कि जितनी भी हमने स्टोरीज पढ़ी है ना, वो लोग सब they were against the wall, they were pushed against the wall, they had nothing, no option but to push back, और उन्होंने देखे सक्सेसफुल हुए। अच्छा, अब ये चीज हम देखते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हम बचपन से ही अपने जनरेशन को, ना हम अपने आप को दी, ना अपनी जनरेशन को दे रहे हैं। वी ऑलवेज हैव समवन टू फॉल बैक ऑन। जब भी कोई क्राइसिस आए, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, इसे मांग लिया, उसे मांग लिया, इधर रह लिया, उधर रह लिया। अच्छा, हम उस क्रूसिबल से गुजर ही नहीं पाते जहां पे हम मोल्ड हो सके गोल्ड के अंदर। बिल्कुल। मुझे ये लगता है पर्सनली कि वी आर नॉट टेस्टेड इनफ एज अ नेशन और एज इंडिविजुअल्स के जहां पे हम वाकई एक लीडर्स जो है ना प्रोड्यूस कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने वो चीजें फेस ही नहीं की होती, हमें हालात पता ही नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। और अगर हो भी, हालात हों भी, तो हम प्रेफर करते हैं कि चलो फौत हो जाते हैं, ज्यादा बेहतर है। जी, मैं सर एक छोटी सी शेयर करूं, शायद हो सकता है कि इसे सबको थोड़ी सी एग्जांपल भी मिल जाए लाइव। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द यूके और आई वाज वर्किंग एज वेल देयर, तो हमारे वहाँ पे एक कॉल सेंटर था, वहाँ पे एज ए स्टूडेंट मैं जॉब कर रहा था पार्ट टाइम। तो वहाँ पे एक बिल्कुल एक टिपिकल किस्म की ना एक ब्लॉन्ड खातून थी, वो काम करती थी मेरे साथ ही। तो हम, आपको पता है कि जब नए नए उधर जाते हैं तो वैसे ही हमें जो है ना बड़ा शौक होता है गोरियों से बात करने का। तो उनसे एक दफा मेरी जो है ना वो चांस मिला, तो गपशप हुई मेरी, और उन्होंने मुझे फिर कहा कि जनाब के इफ यू कैन टेक ओवर माय शिफ्ट टुडे, सो आई हैव टू गो पिक अप माय सन। तो आप सोच सकते हैं कि सुन के मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। सो कहते पिक अप माय सन, मैंने कहा अच्छा यू आर मैरिड? सो कहती यस आई हैव अ 5-year-old सन। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि सिंस यू आर एट वर्क व्हाई डोंट यू टेल योर हस्बैंड टू पिक योर सन? शी सेड दैट आई डोंट हैव अ हस्बैंड। सो उनके कल्चर में आपको पता है कि चलता है इस तरह सिलसिला। सो I was so intrigued, I kept on inquiring. The bottom line was, she was only 21 years old. She had a 5-year-old kid. Matlab at the age of 16, she gave birth to a child. She was not married. Okay? She was not living with her parents. She was studying at a university. She was doing a part-time job. She was looking after a kid. और माथे पे एक बल नहीं। आप जैसा कहें ना कि कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, those people are so mature
मैं ये सोच रहा था कि हम तो 40 साल की उम्र में भी खवातीन जाके अपनी माँ को रोती रहती हैं, जी मेरा ब्याह कितने कराता है तुसी, ठीक है, मैं बर्बाद हो गई। और मर्द हजरात का भी यही सूरत हाल है, वो भी 40 साल की उम्र तक वालिदैन के गोदों से नहीं निकलते, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि एट अ वेरी अर्ली एज उन लोगों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है एंड दे हैव नो अदर ऑप्शन कि वो इसमें से गुजरे सख्तियों में से और वाकई फिर उभर के जो है ना लाइफ के चैलेंजेस को ले सके। बिल्कुल ऐसे ही है। हम एज अ नेशन, जैसे आपने कहा, हम बड़े बड़े ही सुकून में हैं। हमारे तो 30 साल तक तो हमारी फीस घर वाले दे रहे होते हैं बहुत सारे लोगों की, एंड हम डिपेंडेंट होते हैं, इधर नहीं उधर खा लिया उधर नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का कि आप मुश्किल से गुजरें। अगर आपने मुश्किलात नहीं काटी हुई तो जाहिर बात है वो कोई ना कोई इश्यूज आपको आएंगे। और इसी तरह जिस तरह हम अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करके रखते हैं, उनको हमने कभी इंपॉर्टेंस नहीं किसी चीज की बताई, तो वो क्रूसिबल से नहीं गुजरते, तो फिर वो समझे कि रॉ फॉर्म में रह जाते हैं, उनमें कोई चीज डेवलप होना बाकी नहीं होती, कोई उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, बट इवेंचुअली वो बड़ी बुरी तरह फिर फेल होते हैं। बल्कि एक मैं उस दिन पढ़ रहा था एक बात, तो उसने कहा कि आप अपने बच्चों को अगर आपने बड़ा फैसिलिटेट करके रखा हुआ है तो उनको प्लीज लाजमी चक्कर लगवा के लाया करें दूसरी लाइफ का भी। दूसरी लाइफ से मुराद है जो लोग सड़कों पे रहते हैं, मुश्किल से रहते हैं, मुश्किलात में रहते हैं। अगर आप उसके थ्रू उसको गुजारना नहीं चाहते, खैर है, पर एटलीस्ट वो लाइफ उसको दिखा के लाएं ताकि उसको पता हो कि ये लाइफ पॉसिबल है, मैंने कुछ करना है टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ लाइफ। तो एटलीस्ट हमारे तो कई लोगों ने तो ये चीज देखी भी नहीं होती, जिसपे वो एग्जांपल्स बनी हुई है कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो यू कैन हैव केक। तो हमारे ज्यादा हम इसी चक्कर में, हमने एडवर्सिटी सही तरह देखी नहीं है, और जो देखते हैं वो उसको पॉजिटिवली नहीं लेते, वो उससे दे एक्सेप्ट देयर फेलियर, दे एक्सेप्ट देयर डेथ, और वो उसमें रह जाते हैं, उससे वो दे कांट कम आउट ऑफ इट। ठीक हो गया। एंड में कुछ जिसने एसेंशियल्स ऑफ लीडरशिप बताए हैं, उसका अगर किसी के पास कोई थोड़ी बहुत चीज है तो शेयर कर लें, अदरवाइज मैं अटेंडेंस की तरफ जाता हूँ। सर इसमें 3-4 चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं कि तकरीबन इन सब में वो कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वो स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए, होती हैं उन लीडर्स में। जिसमें फर्स्ट थी कि एबिलिटी टू शेयर एंगेज अदर इन द शेयर्ड मीनिंग। जैसे पहली एग्जांपल उन्होंने दी कि बाकी सबको आप उसमें शामिल कर सके, जैसे उन्होंने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की जो एग्जांपल फर्स्ट कॉलेज के, और उसमें जो एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने सबको उसमें शामिल कर लिया, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो लीडर में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सबको एंगेज कर सके शेयर्ड मीनिंग में, सब उसका जो सबको कम्युनिकेट कर सके और सब उस चीज को समझ सके और वो सबको समझा सके, ठीक है, सबको उसी सर्कल में, जिस सर्कल की आगे हम बात कर रहे थे, उस सर्कल के अंदर सबको लेके आ सके जो वो शेयर्ड मीनिंग का सर्कल है। बिल्कुल ठीक। सेकंड वही कंपेलिंग वॉइस, सर, हैव अ डिस्टिंक्टिव एंड कंपेलिंग वॉइस, ठीक है। वॉइस उसमें वही था जो, सॉरी सर, फर्स्ट टाइम डिफरेंट एग्जांपल थी, सेकंड में उसने एग्जांपल दी है कि वो एक वायलेंट सिचुएशन थी, लोग लड़ाई होने लगी थी, एक फाइट होने लगी थी, कि एक ग्रुप कह रहा था कि हमने जो फ्लैग है उसको नीचे उतार के जलाना है, दूसरा कह रहा था हमने करने नहीं देना। तो उसने अपनी बातों से ही और उसने उसका हल क्या निकाला कि उसको नीचे लेके आए और उसको वॉश करके दोबारा ऊपर करें, कि नीचे वालों की बात भी, जो उतारने वालों की है उनकी बात भी पूरी हो गई कि उसने उतार लिया, और दूसरा ग्रुप जो उसको डिफेंड कर रहा था उसको वॉश करके क्लीन करके हम दोबारा उसको ऊपर लहरा देंगे। तो डिस्टिंक्टिव एंड कंपेलिंग वॉइस के एक ऐसा हल उसने निकाला कि जिस पे अग्री हो गए, और वो जो एक सिचुएशन थी जो एक वर्स की तरफ मुड़ सकती थी, उसको जो है उसने कंट्रोल कर लिया। फिर सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, वैल्यूज, ठीक है, जो एक लीडर में एक वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, कि जितना भी एक अपनी एक वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज की रिस्पेक्ट है लीडर की नजर में, ठीक है, अपनी एक वैल्यूज उसको होल्ड करता है, ठीक है, एक सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं हर लीडर के अंदर जिसको वो होल्ड करता है, ठीक है, वट एवर दोज आर, लेकिन वो उनको होल्ड करता है। एंड फाइनली जो है एडेप्टिव कैपेसिटी, ठीक है, जो फाइनली उन्होंने जो चौथी कही थी वो एडेप्टिव कैपेसिटी थी, कि वो दो चीजों से उसने कहा मिलकर बना दी गई है, एबिलिटी टू ग्रास्प कॉन्टेक्स्ट एंड हार्डीनेस। कि द एबिलिटी टू ग्रास्प कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या है कि
आपको कॉन्टेक्स्ट का अंदाजा हो कि जो लोग हैं वो मेरी बात को कैसे लेंगे, ठीक है। अगर उसी सिचुएशन में अगर हम कहते हैं जहाँ पे वो एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी और वो कह रहे थे प्लेटफॉर्म बर्न करेंगे नीचे उतार के, अगर वहां पे ही वो उस सिचुएशन को ग्रास्प ना करता, ठीक है, और वो कोई ऐसा ऑर्डर दे देता जी गलत हो रहा है, इलीगल हो रहा है, लॉ से हट के बात हो रही है, इनको पुलिस बुलाई जाए, तो हो सकता है वो मजीद वायलेंट क्लैशेस में वो चीज उड़ जाती। तो उसने कॉन्टेक्स्ट को ग्रास्प किया। वहां पे एक दो एग्जांपल और भी यहाँ पे से लिखी हुई थी, ठीक है। एक कोका कोला के जो है वो एग्जेक्टिव की थी कि उसने अफ्रीकन अमेरिकन एक एग्जेक्टिव को, हाईएस्ट रैंकिंग अफ्रीकन अमेरिकन एग्जेक्टिव को उतार दिया सिर्फ इस बात की वजह से कि जो अफ्रीकन लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उन्होंने एक जो एक लॉ सूट था 200 मिलियन का वो लाया था और वो जीत रहे थे और कंपनी हार रही थी, और उस बात की बेस पे उसने उस अफ्रीकन अमेरिकन एग्जेक्टिव को फारिग कर दिया, और वो भी उस शहर में अटलांटा जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन की मेजोरिटी है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। सेकेंडली हार्डीनेस, तो हार्डीनेस कोई परसेवेरेंस, टफनेस के जो लोग हैं वो अपने अंदर एक, आपके अंदर एक हार्डी रेजिलियंस जिसको हम कह सकते हैं कि मुश्किल हालात में अपने आप को मुश्किल हालात से दोबारा निकालना, ट्रांसेंड करना, वही बात राइजिंग फ्रॉम द एशेस के एक मुश्किल हालात से अपने आप को दोबारा ऊपर लेके आना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें अगर आप देख सकें किसी वक्त तो एक पोएम है इफ के नाम से, वो आई थिंक बड़ी रेलेवेंट बनती है इधर। अगर आपका कहीं थोड़ा सा टाइम मिले आपको छुट्टियों में या कुछ में, तो उसको एक दफा जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट टाइम उसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 10 मिनट के लिए। इट्स अ वेरी गुड पोएम, रेडियार्ड किपलिंग की है मेरे ख्याल में। उसका नाम है इफ। तो अगर आप लिखेंगे इफ पोएम तो वो आपको नेट पे आराम से मिल जाएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। इट्स अ वेरी रेलेवेंट हमारे इस टॉपिक से भी, और वैसे भी काफी काम किया। हो गया, थैंक यू। मुझे सिर्फ जी कुछ कहना तो नहीं चाह रहा कोई? नो सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैंने जिन लोगों की एब्सेंट लगाई है, कासिम, अरसलान गुल, आमिश, राबिया, अब्दुल अजीज, मोहम्मद अरसलान, इनमें से कोई क्लास में तो नहीं है? सर अब्दुल अजीज का मैसेज आया था कि वो वैक्सीनेशन के लिए गया हुआ है, तो सर को इन्फॉर्म कर दे। उसको कहना मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि उसको कोई इफेक्ट ना हो, ठीक रहेगा इंशाल्लाह। सो अभी एब्सेंट उसकी एज सच वो उस तरह नहीं है। आई थिंक पहली दूसरी एब्सेंट है उसकी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके सर, इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड खैरियत से आपकी छुट्टियां उठियां गुजरे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी कब होती है, उस हिसाब से इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। रबाब ठीक है।